Dear all the viewers of my channel, all of you are most welcome to my channel. That is the village teacher, and I am S.K. Tripathi, your village teacher under whose guidance you are learning English. At first, I would like to recast you that you should not cut my video in the beginning or watching after only 2 or 3 minutes. You have to go into the video to the end. After that, I would like to remind you that during the past few days I have made at least 15 videos. So those videos are only the glimpse of my teaching, only the trailer of my teaching. I wanted to give you a glimpse that what kind of teaching will be in this channel. That is teaching of English. Now, if you have watched all my videos, you will come to know that among them 3 were based on poetry. 3 or 4 were based on poetry. And out of them 11 were based on translation and grammar. 2 videos were based on castrative verbs translation, and 1 video was based on passive voice translation, and about 9 videos were on active voice and passive voice. That was advanced teaching of active voice and passive voice. I can say that was only a glimpse of my teaching, but in real senses the teaching starts from today. The method of my teaching is that at first, in the beginning, I start teaching with reading of lessons, short stories, poems, etc. And there I give the students vocabulary and pleasures of reading. After that, I go into translation. I teach every part, every major and minor part of translation. After that, I go into grammar and teach every essential part of grammar. In the same way, on this YouTube channel, my planning is to teach translation from today. And as you know, the building of any language is constructed on the 4 pillars that are its vocabulary, its rules of translation, its rules of grammar, and pleasures of reading. If accurate or if a strong work is done on these 4 pillars, we become successful in learning English subject or English language. Now today I have to start teaching of sentences. We know that the smallest unit of any language is its a letter. A letter makes words, and words make sentences, and sentences make the whole lesson and the whole book. So sentences are utmost necessary, and we have to understand the rules of translation. I have already written the classification of sentence on blackboard. You have to understand it attentively. Please watch the video from beginning to the end, and like them. Also write comments on this video in the comment section, and send them to your dearest and nearest acquaintances, familiar persons. Now come and understand with me. देखिए, हम लोगों को सेंटेंसेस के बारे में समझना है. वाक्यों पर ही किताबें और पूरी भाषा बनती है. तो वाक्य के बारे में समझना है. अंग्रेजी में वाक्य को 3 भागों में विभाजित किया गया है. वैसे प्राय कुछ लोग ये गलती कर देते हैं कि वाक्य होते हैं सिंपल सेंटेंस,
नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन एक्चुअली में सही ये है कि 3 उनके भाग हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ये हैं। सिंपल सेंटेंसेस को हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं, अब कंपाउंड सेंटेंसेस को संयुक्त वाक्य कहते हैं। कंपाउंड माने मिश्रित या यौगिक, ऐसा उसका अर्थ है, जुड़ा हुआ, और कॉम्प्लेक्स का मतलब मिश्रित, मिला हुआ है। तो ये 3 रियल में पार्ट है सेंटेंस के, सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ये तो जो भी आपको ये कंफ्यूजन होता है कि वो इंट्रोगेटिव अलग है सिंपल से, नहीं, वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सभी सिंपल के ही पार्ट हमको समझना है यहाँ पे। तो सबसे पहले आइए जो हम सिंपल सेंटेंसेस को समझते हैं वो क्या है। तो सिंपल सेंटेंसेस के भी 5 पार्ट हैं। उनमें से सबसे पहला है असर्टिव सेंटेंसेस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंसेस, चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस को हिंदी में निश्चयात्मक वाक्य कहते हैं। इसके अंग्रेज विद्वानों ने जो परिभाषा डेफिनेशन लिखी हुई ये लिखी है कि द सेंटेंसेस that affirm or deny, the sentences that affirm or deny are called assertive sentences। मतलब द सेंटेंसेस में वाक्य that affirm जो स्वीकार करते हैं, और deny अथवा इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं, are called assertive sentences, उन्हें निश्चयात्मक वाक्य कहा जाता है। कैसे? जैसे राम स्कूल जाता है तो ये बात स्वीकार कर ली गई, राम गोज टू स्कूल, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अगर ये बोल दिया राम डज नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जाता, तो इस बात को हमने माना नहीं कि राम स्कूल जाता है, तो मना कर दिया कि नहीं जाता है, ये निगेटिव सेंटेंस है। तो ऐसे समझना है कि असर्टिव सेंटेंसेस के जो 2 भाग नीचे में लिखे हुए, असर्टिव सेंटेंसेस के भी 2 भाग हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस और निगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को पॉजिटिव या अफर्मेटिव बोलते हैं, स्वीकारात्मक या सकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसमें बात को स्वीकार करते हैं, कुछ भी हो, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। और जो मना कर देते, नहीं मानते बात को, तो वो निगेटिव सेंटेंसेस है। लेकिन ये दोनों ही भाग असर्टिव सेंटेंसेस के हैं, उनको हिंदी में निश्चयात्मक वाक्य कहते हैं। और ये पहला पार्ट है सिंपल सेंटेंस का, जो असर्टिव सेंटेंस है। अब जो दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो आप जानते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहे जाते हैं। चाहे वो शुरू में सहायक क्रिया हिंदी में क्या से शुरू हो या प्रश्नवाचक वाट वगैरह से शुरू हो, वो प्रश्नवाचक वाक्य है। उसके बाद में इंपरेटिव सेंटेंसेस का नंबर आता है, तो इंपरेटिव सेंटेंसेस को आज्ञादि सूचक वाक्य कहते हैं। आज्ञादि मतलब आज्ञा आदि की सूचना देने वाले वाक्य। इन वाक्यों में आज्ञा, निवेदन, सलाह, निषेध वगैरह ये भाव व्यक्त होते हैं। जैसे वहाँ इसी वक्त तुरंत कमरे से बाहर निकल जाइए, या कृपया मेरा ये काम कर दीजिए, या झूठ मत बोलिए, या ऐसे वाक्य है, ये आज्ञा, सलाह, निवेदन वगैरह है, वो इंपरेटिव सेंटेंसेस अंग्रेजी में बोला जाता है। हिंदी में उनको आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। उसके बाद में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, इनको हिंदी में विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं। विस्मय आदि का बोध कराने वाले वाक्य। विस्मय मतलब आश्चर्य होता है, आश्चर्य आदि का बोध कराने वाले वाक्य। जैसे आहा कितना सुंदर कपड़ा है, ओहो कितनी लुभावनी या सुहावनी सुबह है, कितना मूर्ख है वो, अफसोस है कितनी कम उम्र में वो मर गया, आहा मैं जीत गए, ये खुशी, आश्चर्य, घृणा, दुख, ये सब भाव प्रकट होते हैं, विस्मय आदि बोधक वाक्य कहे जाते हैं। अंग्रेजी में उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोला जाता है। इसका 5वां पार्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इनको वैकल्पिक या आशा सूचक या शुभकामना सूचक वाक्य कहते हैं। इससे शुभकामनाएं, अभिशाप और ये बधाइयां व्यक्त की जाती है। जैसे सुबह की नमस्ते, गुड मॉर्निंग, या भगवान करे आप जुग जुग जिए, या भगवान करे तुम परीक्षा में सफल हो जाओ, भाड़ में जाइए। ऐसे वाक्य जो ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में गणना की जाती है। तो मैंने बताया कि सिंपल सेंटेंस जो सेंटेंस का पहला पार्ट है, वैसे 3 पार्ट है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। तो पहले पार्ट के 5 भाग हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। और असर्टिव सेंटेंस के 2 भाग हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस। इनका विवरण सब आपको ट्रांसलेशन में बताया जाएगा। आप जो हर चीज वाक्य से ही बनती है, तो वाक्य के बारे में शुरुआत हमने कर दी है, ट्रांसलेशन की शुरुआत कल करेंगे।
वहाँ हमें कहाँ से प्रेजेंट इंडेफिनिट शुरुआत करनी है या इजएमआर जो मॉडल सेट है वहां से करनी है, हमें डिसाइड करना है। लेकिन अब कल से ट्रांसलेशन शुरू होना है, आपको वीडियोस बराबर देखने हैं, आज नहीं तो कल समझ में आएगा। इंग्लिश का ब्यौरा हम दे रहे हैं, इनको सेंड फॉरवर्ड जरूर करिए ताकि ये सही लोगों तक, सही जगहों तक पहुंचे और लोग फायदा उठा सके। और देखिएगा दूसरा पार्ट हमें लिखा हुआ है, ये कंपाउंड सेंटेंसेस, इनको संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो इसकी परिभाषा ये है कि इनमें एक प्रिंसिपल क्लास होता है और एक या एक से अधिक वो कोऑर्डिनेट क्लासेस होते हैं। ये बात कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? वो चार पार्ट में क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस, एडवर्सेटिव कंजंक्शंस, अल्टरनेटिव कंजंक्शंस और रिलेटिव कंजंक्शंस। इनके अलावा ये रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब्स का कंटिन्यूटी यूज करके भी बनाते हैं। अगर आप सोचे अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब कंपाउंड सेंटेंसेस आपको स्पेशल ये पढ़ाए जाएंगे टॉपिक उठा करके तो आपको समझ में आ जाएंगे। यहाँ तो मैं सिर्फ एक झलक दे रहा हूँ कि वाक्य कितने प्रकार के हैं, क्या क्या है। ये अभी शुरू में थोड़ा उनका एक झलक हमने दिया, अभी पढ़ाया कुछ भी नहीं है। अभी तो इन पे बहुत काम चलेगा, आपको समझ में आएंगे। तो वो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं वो विस्तार से बताना है, लेकिन यहाँ बताना है कि वो संयुक्त संयोजक उनको बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को, उनसे ये वाक्य जोड़े जाते हैं। मतलब इनमें एक प्रिंसिपल क्लास होता है, एक दूसरा समान पदी उपवाक्य होता है, कोऑर्डिनेट क्लासेस होते हैं। वो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, किसी पर कोई डिपेंड नहीं होता है। जैसे मैंने एक शेर देखा, आई सॉ ए लायन, और मैं पेड़ पर चढ़ गया, आई क्लाइम्ब द ट्री। तो मैंने शेर को देखा और मैं पेड़ पे चढ़ गया। अगर ऐसा बना लिया, आई सॉ ए लायन एंड आई क्लाइम्ब द ट्री, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। और यही बात अगर हम इसमें कॉम्प्लेक्स में अगर ले जाएं तो उसमें आश्रित हो जाएगा उसमें, क्योंकि वो सबऑर्डिनेट क्लास होती है, आश्रित उपवाक्य होता है। जैसे ही मैंने शेर को देखा वैसे ही मैं पेड़ पे चढ़ गया। तो अगर अधूरा वाक्य बोलते कि जैसे ही मैंने शेर को देखा, आगे ना बोले तो अर्थ पूरा ही नहीं हुआ। तो बोलना पड़ेगा, उस पर वो आश्रित है, इसीलिए उसमें सबऑर्डिनेट क्लास है और वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। उनके बारे में बहुत लंबा चौड़ा विवरण है, एक दिन में आप सारा तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ स्पष्ट तरीके से समझेंगे। तो यहाँ तो एक प्रिंसिपल क्लास, बाकी कोऑर्डिनेट क्लासेस होती है, एक दूसरे पर वो डिपेंड नहीं होती, सबके अर्थ अलग अलग हैं, एक दूसरे आश्रित नहीं है, उनका पूर्ण अर्थ होता है। लेकिन यहाँ कॉम्प्लेक्स में वो सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन होते हैं। अगर वाक्य आधा बोला जाएगा तो आगे दूसरा शेष भाग बोलना ही पड़ेगा, वरना उसका अर्थ ही नहीं पूरा होगा। तो आप समझेंगे। यहाँ क्या समझना, मैंने बोला है कि क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस वो एंड वगैरह है, एंड नॉट ओनली बट आल्सो एज वेल ऐसे बनते हैं। एडवर्सेटिव कंजंक्शन विरोध सूचक संयोजक है, इनसे विरोधी भाव प्रकट होते हैं। वो ये है बट स्टिल नेवरदलेस हाउएवर एट, फिर भी लेकिन ये आते हैं इनमें। और अल्टरनेटिव कंजंक्शंस हैं, इनमें विकल्प होते हैं, विकल्प सूचक संयोजक है, चयन सूचक। जैसे या तो जल्दी कर लो या ऐसा कर लो वरना ऐसा हो जाएगा, दो विकल्प है। जैसे या तो उसने मेरा कलम चुराया, उसके भाई ना इधर आर ना इधर ना, वो सही से विवरण पढ़ाया जाएगा आगे। और रिलेटिव कंजंक्शंस वो है जो परिणाम सूचक या कारण सूचक संयोजक है। जैसे उसने बहुत कठिन परिश्रम किया इसीलिए वो पास हो गया, ऐसा वो पास हो गया क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया। सो देयरफॉर हैंस और फॉर से कंजंक्शन है। जब ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा बहुत विस्तार से पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा इन चारों कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के अलावा रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब्स के प्रयोग से भी कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं। तो आपको समझाया जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन होते क्या है, रिलेटिव एडवर्ब्स होते क्या है, उनका कंटिन्यूटिव रिस्ट्रिक्टिव यूज होता क्या है, उसका एडजेक्टिव क्लास में कैसे प्रयोग करते हैं, कंपाउंड सेंटेंस में कैसे प्रयोग करते हैं। जब चैप्टर चलेंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा। अब आइए देखते हैं तीसरा पार्ट है ये इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। मिश्रित वाक्य कहते हैं। मिश्रित मतलब मिला हुआ, जिसको हटाना अलग हो, जैसे दूध में पानी मिला दे, जैसे खड़िया पीसी उसमें चीनी पीस के मिला दे, ऐसे उनको अलग करना कठिन होता है। कंपाउंड मतलब सही जुड़ा हुआ है, तो जुड़ा हुआ तो खोल सकते, रस्सी के दो टुकड़े ज्वाइंट उनको खोल के अलग भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मिला हुआ को अलग करना कठिन। इसमें सबऑर्डिनेट क्लास होती है, उसको अगर अधूरा वाक्य अगर रह गया, पूरा नहीं बोला, तो उसका अर्थ दूसरे का प्रकट नहीं हो पाता है, अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता, इसलिए बोलना ही पड़ता है प्रिंसिपल क्लास को। तो ये कैसे बनते हैं, तो इनमें तो 10 पार्ट में पढ़ाता हूँ। एडवर्ब क्लास आपका ये जो तीन में चलते हैं जो क्लासेस है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के,
by using a noun class, by using an adjective class और by using an adverb class। नाउन क्लास में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाले नियम बहुत काम करते हैं, और एडजेक्टिव क्लास जो बनता है वो रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का रिस्ट्रक्टिव यूज होता है। कंपाउंड सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव एडवर्ब का कॉन्टिन्यूटिव यूज होता है, और यहाँ भी एडजेक्टिव क्लास भी है, रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव एडवर्ब सही बनती, लेकिन वहाँ उसका रिस्ट्रिक्टिव सीमित अर्थ देने वाला प्रयोग होता है। जैसे ये वही स्कूल है जहाँ मैं पिछले साल पढ़ाता था, ये एडजेक्टिव क्लास है, दिस इज द स्कूल वेयर आई टॉट लास्ट ईयर। लेकिन ऐसे बोल दे कि पिछले हफ्ते में आगरा गया जहाँ मैंने ताजमहल देखा, तो उसमें कंटिन्यूटी है, लास्ट वीक आई वेंट टू आगरा वेयर आई सॉ द ताज, तो ये कंपाउंड है। लेकिन दिस इज द स्कूल वेयर आई टॉट लास्ट ईयर ये कॉम्प्लेक्स है। तो ये भी चैप्टर चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। और एडजेक्टिव क्लास ये रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव एडवर्ब का कॉन्टिन्यूटी यूज से बनता है। और तीसरा जो एडवर्ब क्लास है वो एडवर्ब क्लास तो उसके कंजंक्शन स्पेशल है। एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम में कंजंक्शन है, एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस में कंजंक्शन है, एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन है, एडवर्ब क्लास ऑफ मैनर है, एडवर्ब क्लास ऑफ सपोजिशन है, एडवर्ब क्लास ऑफ कॉन्ट्रास्ट है, एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस है, एडवर्ब क्लास ऑफ रिजल्ट है, एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन है। वहां उसकी विधिवत जब पढ़ाई करवाई जाएगी ये सब, तो आपको ट्रांसलेशन करना भी आएगा, आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना आएगा, आपको सिंथेसिस करनी आएगी। और ये तीन ही पार्ट हैं वाक्य के जिनमें इनका अध्ययन करना पड़ता है, तो इनके आगे पढ़ाई विधिवत चलेगी। आज तो मैंने आपको ये ट्रांसलेशन तो कल से ही शुरू करना है। सेंटेंस का क्लासिफिकेशन बताया हुआ है कि सेंटेंसेस वाकई रियल में होते क्या है। तो वीडियोस को भले ही आप बेमन देखें और अंत तक देखें, धीरे धीरे आपकी रुचि पैदा होगी, क्योंकि अच्छी चीजें बेमन ही की जाती है, पढ़ाई भी उनमें शामिल है। इनमें इतना तो डल चीजें हैं कि लोग जबरदस्ती बेमन ही शुरू करते, तब उन्हें थोड़ा बहुत आनंद उसमें आता है और इंटरेस्ट बढ़ता है। इसलिए वीडियोस को मन से बेमन से शुरू से लास्ट तक देखिएगा, उनको शेयर और फॉरवर्ड जरूर कर दीजिए, सब जगह करिए, अच्छे बुरे जो भी हो उनमें कुछ उनको परखने वाले मिल ही जाएंगे। इतना तो आपको करना ही है, क्योंकि जो भी मेरे पास पढ़ा करते हुए अच्छे विद्यार्थियों को यही करना पड़ता है कि मेहनत से पढ़ना भी है और उस पढ़ाई का पढ़ाने वाले का वो जो प्रचार भी करना है, और पढ़ लिख के कुछ स्वयं भी मेहनत करके दिखाना है कि अच्छा पढ़ाया गया। तो इस प्रकार से या आपको थोड़ा ध्यान देके पढ़ना भी है, समझना भी। जो आप फालतू का टाइम बर्बाद करते हैं बेकार के वीडियो देखने में, वो इसका इम्पोर्टेंस को समझिए, इनको देखिए, क्योंकि ये वही चीज हम पढ़ा रहे हैं। इसको बहुत बड़ी कोचिंगों में जहां वो लाखों रुपए का बिजनेस करते हैं, तो ये चीजें वहां पढ़ने को मिलती हैं। या यही चीजें अच्छी अच्छी किताबों में जब लिख दी जाती है तो किताबें बहुत पॉपुलर होती हैं, वो लाखों करोड़ों की बिकती हैं। यहाँ वही चीज आपको यहाँ एक विलेज टीचर चैनल पर हमको सिंपली आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका एंजॉय करिए और बेनिफिट फायदा उठाइएगा। थैंक यू।